this channel once again. Friends, in this video, we are going to learn various properties, various types of the matrix which are not given in your NCERT. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो कि आपके NCERT बुक्स एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट बुक्स में ये सारे मैट्रिक्स नहीं दिए रहते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन एज इट इज़ इसी टाइप के मैट्रिक्स से मिलेंगे जो बुक में नहीं दिए रहते हैं. तो फ्रेंड्स, in this video we will learn some important type of matrix. So if you are new to the channel, please subscribe the channel, suggest the same channel to your friends, like the channel. So let us start the discussion for the today. So friends, we are starting with a new series called hashtag shortcut. I have already made various videos of the shortcut related to the calculus, trigonometry, binomial theorem, quadratic equation, permutation and combination. You can watch all those videos by visiting the playlist of this channel. So we will learn now various types of matrix other than NCERT. These type of matrix are not given in NCERT. So first type is what is called symmetric matrix. Symmetric matrix का मतलब होता है if you take a matrix A and if that same matrix is equal to its transpose. अब how transpose matrix is made? If you take a matrix A and you write all the row elements into the column elements and all the column elements into the row elements, then whatever will be the result, that will be symmetric matrix. So यहाँ पर आप symmetric matrix किसे कहेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल हो तब ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. अब हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड टाइप दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक में जस्ट इट इज सिमिलर टू सिमेट्रिक ओनली, बट इन हियर in place of A transpose we will have minus of A transpose. In this case, if कोई मैट्रिक्स A हो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का नेगेटिव दोनों इक्वल हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का नेगेटिव दोनों इक्वल हो, तब ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर हाल में होगा. I hope all of you got these two points for the day, and these 2 points are very much important. Questions will come directly in the exam. If you don't believe it, please, you can please visit the previous year question paper. So we will move over to the third one. अब हम तीसरे की ओर बढ़ेंगे. अगर A इंटू ए ट्रांसपोज, अगर आप कोई मैट्रिक्स A ले रहे हो और उसका ट्रांसपोज भी ले रहे हो और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब इफ़ यू आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, if you multiply A into A transpose and if you are getting an identity matrix, then this A matrix is orthogonal matrix. I hope all of you understood the third one. Now moving over to the fourth one, what is called Hermitian matrix. This Hermitian and skew Hermitian matrix, both the types of matrix has repeatedly come in NDA exam. Even in NDA 2 and NDA 1 2019 2018, it has come already in the previous year paper. So here I am there to tell you what is Hermitian and skew Hermitian matrix. If you take the bar of any matrix to the whole transpose, if you take bar of any matrix to the whole transpose, if you are getting same as A, for example, if you take any matrix A and you find the conjugate of that matrix, bar means conjugate, and after finding the conjugate, if you find out the transpose of the same conjugate matrix, and again if you are getting A, then that A matrix is said to be Hermitian matrix. I hope all of you got. एक बार मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अगर आप कोई मैट्रिक्स A ले रहे हो और उसका कॉन्जुगेट निकाल कर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो और निकालने के बाद भी अगर आपको वो मैट्रिक्स एज इट इज़ ए आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर. तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये अगेन सिमिलर टू फोर्थ प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साइन का चेंज है. इफ़ यू टेक अ मैट्रिक्स ए एंड if you take the conjugate of the matrix and take the overall transpose of the matrix, and if you are getting minus of A, then that A matrix will be skew Hermitian.
एक बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ़ यू आर टेकिंग एनी मैट्रिक्स ए, यू आर फाइंडिंग, अगर आप कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हो, उसका कॉन्जुगेट आप निकाल रहे हो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तब आपका आंसर -a आ रहा है, तो ये ए मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड some important properties of the matrices, and these properties are not given in your NCERT books. So properties of symmetric and skew symmetric matrix. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ A is a square matrix then A plus A transpose A into A transpose into A are symmetric matrices. इसको मैं एक बार हिंदी में समझा दे रहा हूँ। इफ यू टेक एनी मैट्रिक्स A and if you find the transpose of the matrix and if you add both the matrix, both the A and A transpose, again if you are taking a matrix and if you are multiplying with the transpose of the matrix, again if you take any matrix, find out the transpose and you multiply A with the matrix, in all three cases you will get symmetric matrix only. I hope all of you got this first properties of symmetric and skew symmetric matrix, but I have one other thing. If you are but if you find out A minus A bar A transpose, then what type of matrix it will be? If you take a matrix A, you find out the transpose of the matrix and you subtract that transpose with the A, then this you will get as skew symmetric matrix. अगर आप कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हो और उसके ट्रांसपोज को माइनस कर रहे हो, देन यू विल गेट, तब आपको जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए प्लस और माइनस बी, AB plus BA are also symmetric matrices. If I tell in layman language, if A, अगर A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और अगर आपसे पूछ रहा है कि A प्लस बी, A माइनस बी एंड AB प्लस BA किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो ये तीनों क्या होगा, ये तीनों हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। I hope all of you got the first second property of the symmetric and skew symmetric. Now we will move over to the second one. If you are asked to find AB minus BA, here we studied AB plus BA, then it was symmetric. लेकिन if you are asked to find AB minus BA, then it is skew symmetric matrix always. In every case this is there. सभी केस में ये प्रूफ होता है, ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। और इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए बी इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए और बी दोनों अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो, आप अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये वाला सिर्फ ए बी, ओनली ए बी, नॉट बी ए, ओनली ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। I hope all of you got the second property. Now we are moving over to the third property. So third property, what it says, if A and B are two skew symmetric matrices, अगर A और B दो skew symmetric matrices हैं, then फर्स्ट वन A प्लस B और A माइनस B, AB माइनस BA, both are skew symmetric matrices. This is similar to the previous one. This is similar to the previous one, but here it is given that A and B are skew symmetric matrices, but in previous one it was A and B are symmetric matrices. If A and B are skew symmetric matrix, then A plus B, A minus B and AB minus BA, all three will be skew symmetric matrix always in every case. I hope all of you got this one. एक बार मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए,
ये तीनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे हर हाल में। अब बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। बी नंबर क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी प्लस बी ए। जब ए और बी दोनों अलग अलग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें प्लस बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दी थर्ड वन। नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द फोर्थ प्रॉपर्टीज। सो फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, कैन यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, let us say A is any square matrix, then if you find A plus A bar, if you find A minus A bar, you find the half of both A plus A bar and A minus A bar, you add both and you will get ultimately A, and you can express this matrix A as sum of symmetric and skew symmetric matrix. As I told you earlier that A plus A transpose is always symmetric matrix. I told you earlier that A plus A transpose is what? Symmetric matrix, and A minus A transpose is what? Skew symmetric matrix. So in this case, this square matrix A can be written as sum of symmetric, this is symmetric, and skew symmetric, this is skew symmetric. एक बार मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स अगर जो A है और उसे आप किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। आपने अभी पढ़ा कि ए प्लस ए बार सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए बार स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर वही ए होगा। तो अगर आप इसको सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए हमेशा दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होता है। आई होप सभी लोग ये समझ गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग ओवर टू दी अदर प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉपर्टीज आर अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ए बी का होल इनवर्स, सपोज वी हैव टू मैट्रिक्स and it is multiplied, and if you are asked to find the inverse of both the matrix, then it is not A inverse B inverse. No, it is wrong. It is B inverse into A inverse. It's the property of matrix. Okay, all of you got this one? AB to the whole inverse is equal to B inverse A inverse. Next thing, A plus A bar is always symmetric matrix and A minus A bar is always skew symmetric. This already I told you earlier also. See, once again I'll show you. A plus A bar, this is symmetric, and A minus A bar is skew symmetric. Same thing is written here also. So it's simple. Then again, A into A bar, मतलब A into A transpose हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहे A और उसके ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा हर हाल में, सभी केस में। नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द मैट्रिक्स B बार इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू A एज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस केस में, अब इस केस में हम कैसे लेंगे? अगर आपको कोई मैट्रिक्स A और B दिया रहे और आप B बार निकाल दे रहे हो, B बार निकालने के बाद B बार A B इस तीनों को आप गुना कर रहे हो, तो इस केस में ये मैट्रिक्स दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक कब होगा? अगर A सिमेट्रिक होगा, ये वाला A अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये कंप्लीटली सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होता है ये कंप्लीटली स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन, दिस प्रॉपर्टी। वंस अगेन आई विल टेल यू, in this case if A and B are two matrices and if you are asked to find B bar AB, then this is symmetric when A is symmetric. When A is symmetric, then this complete is symmetric, and when this A is skew symmetric, then this complete is also skew symmetric. I hope all of you got. Now again we will move over to the next property. All positive integral power of a symmetric matrix are symmetric.
these all property whatever I have told you are very very much important questions, have directly appeared, and simple questions are asked from this matrix and determinant chapter. You can easily score mark. Around 10 questions will come from matrix and determinant chapter. So 10 into 2.5, 25 marks. You can get it very easily in NDA examination. So in this case, all positive integral power of a symmetric matrix are always symmetric. This is again similar, already I told you earlier. Then next, positive odd integer integral power of symmetric matrix are skew symmetric, and positive even integral power of skew symmetric matrix are symmetric. यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटेग्रल पावर, इंटेग्रल मतलब कोई होल नंबर के टाइप में, अगर कोई होल नंबर के टाइप में पावर में दिया हुआ रहे ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पावर में कोई नंबर दिया हुआ रहे, तब उसके बाद उसको सोल्व करने के बाद आंसर भी उसकी सिमेट्रिक ही होगा. और अगर सिमेट्रिक और इवन पावर दिया रहे, इवन पावर, अगर लेट अस से I'll tell you in simple word. For example, if any skew symmetric matrix is given, let us say it is skew symmetric matrix. If you are given power odd, we can take odd as any power 7. Then whatever result you will get, that result is going to be skew symmetric only. Skew symmetric only. And if the same power is even, let us say the power is even, but in this case result will be symmetric matrix. All of you got. एक बार मैं फिर से हिंदी में समझा दे रहा हूँ. अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका पावर ऑड हो, ऑड लेट अस से 7, इसका पावर कोई विषम संख्या हो, तब इसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेकिन अगर इसका पावर सम संख्या हो, इवन नंबर, तब वो सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. स्क्यू सिमेट्रिक का पावर कोई इवन नंबर हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन. नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पेज फॉर द डे. Last page property. This page property says that inverse of any symmetric matrix is symmetric matrix only. कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर जो आप लें और आप उसका इन्वर्स निकालें तो उसका रिजल्ट भी सिमेट्रिक ही आएगा. अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक एग्जाम्पल लेकर उसका इन्वर्स निकाल कर चेक कर सकते हैं, वो भी उसका रिजल्ट भी सिमेट्रिक ही होगा. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर. द इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन डायगोनल. मतलब इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. ऑल ऑफ यू गॉट दिस बोथ दी प्रॉपर्टीज. सभी लोग ये बोथ प्रॉपर्टी समझ गए होंगे. अभी एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी इनवर्स अगर जो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो इन्वर्स निकालने के बाद भी वो इधर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की ओर. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट अस से ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, देन ए बी ए इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वंस अगेन आई विल टेल यू इन हिंदी. अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, लेट अस से ऑर्डर इज 3, 4 एनी नंबर n, तब इस केस में अगर आप a इंटू बी इंटू ए करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, हर हाल में होगा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस प्रॉपर्टी. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. दिस इज अगेन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस हैज कम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ यू टेक एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऑलरेडी आई टोल्ड यू अर्लियर, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज आई. इफ दिस इज द केस देन इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. एंड ऑल द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एवरी सभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल. हमेशा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. उसके बाद एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी ऑर्थोगोनल. यहाँ पे एवरी ऑर्थोगोनल इज इन्वर्टिबल, बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा, नहीं. इस केस में हमेशा ऑर्थोगोनल इन्वर्टिबल होगा प्रत्येक हाल में, लेकिन सभी ऑर्थोगोनल इन्वर्टिबल नहीं होगा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस.
Now we are moving over to the last two properties. If A is an orthogonal matrix, then A inverse is also orthogonal matrix. अगर A कोई orthogonal matrix है, अब आप कैसे पता करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आई आ रहा हो तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी ही ऑर्थोगोनल होगा. प्रत्येक केस में, हर एक हाल में ये होगा. अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज की ओर. Here the last and final properties of the day says that determinant of a skew symmetric matrix of odd order is 0 and even order is non-zero perfect square. This is again previous year question which has come in NDA written exam. Previous year question it has come. Here it says that if you find the determinant of any skew symmetric matrix of odd order, for example if you take any स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ऑड हो, ऑड का मतलब कोई नंबर वी कैन टेक 7, दैट इज से दिस इज ऑफ 3 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू इन एवरी हेल केस इट विल बी 0. यू नो नीड टू एक्सपैंड द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड एंड फाइंड द वैल्यू. अगर आपको कहीं भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख गया और वो ऑड ऑर्डर का पता चल गया तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा हमेशा आप आंख बंद कर 0 लिख देंगे, हमेशा, प्रत्येक केस में. लेकिन अगर ये इवन ऑर्डर का हो तब क्या होगा? जब ऑड ऑर्डर का था तो 0 हुआ, लेकिन जब इवन ऑर्डर का होगा देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर. मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा ये हमेशा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा. कब? जब उसका ऑर्डर इवन हो. लेट अस से इफ आई एम टेकिंग एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो इस केस में जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका आंसर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा. परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा हर एक हाल में, और वो 0 नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर. इट कैन बी 1, इट कैन बी 4, इट कैन बी 9, 16, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग आज की प्रॉपर्टीज, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आज पढ़ाया, सभी लोग समझ गए होंगे. और ये प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आज का जो ये वीडियो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसे अपने फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर प्रत्येक एग्जाम में आया हुआ है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. So friends, if you are new to the channel, please subscribe, like, share the channel, suggest the channel, and stay tuned in this channel and get ready for the next video which will be released soon. And also comment in the comment section that on which chapter you want next video. I will be ready to give all those videos. I have one more thing to say, that the content which I am giving on this YouTube channel is firstly free of cost, and next thing is that these contents are not mentioned in your NCERT books. These contents are not mentioned in your NCERT books, not mentioned. So please stay tuned in this channel, because questions will come directly from this channel. So thank you friends for tuning till the end. Jai Hind.